Assalamu alaikum and good morning, students. This is Miss Ursula Zishan from Guards Public Higher Secondary School 1. I hope you all are fine. I welcome you all once again in lecture 5 of SST for class 3. Before starting our today's lecture, let's take a revision of our previous lecture. So, do you remember, my dear students, what we have learned in our previous lecture? Yes, we have learned about space. What is space? Space is the vast darkness beyond the earth and sky. What is solar system? A solar system is made up of the sun and 8 planets that move around it in space. The earth, the planet where we live. Earth is the only planet that supports life on earth. The sun, the sun is a bright star and it is made up of very hot burning gases. And sun is the nearest star to our earth. The moon. The moon is the natural satellite of the earth and it goes round the earth. What causes day and night? The spinning movement of the earth causes day and night. Now, let's start our today's lecture. And our topic is land and water. In this lecture, we will discuss about ratio of land and water on the earth, coast, oceans and seas, mountains, hills and valleys, plateaus, plains and deserts. Differentiate between an island and a lake, rivers, and our last topic is why it is important to keep our lakes and rivers clean. First topic is ratio of land and water on the earth. As you can see in the diagram, the surface of the earth is made up of land and water. About 70% of the earth's surface is covered with oceans and seas. आप डायग्राम में देख सकते हैं कि किस तरह से जो हमारी प्लैनेट अर्थ है उसकी जो सरफेस है वो दो चीज़ों से बनी है, एक है लैंड और दूसरी है वाटर। 70% हमारी अर्थ की जो सरफेस है वो कवर्ड है ओशंस और सी से and about 30% of the earth's surface is covered with different landform और 30% जो है वो हमारी जो अर्थ है वो कवर्ड है डिफरेंट लैंडफॉर्म से जिसमें माउंटेन्स, प्लेटोज, हिल्स, डेजर्ट्स एक्सेट्रा जो है वो आ जाते हैं। Our second topic is coast. What is coast? The land near the sea is called coast. वो ज़मीन जो समंदर से नज़दीक होती है उसे हम कोस्ट कहते हैं। इसे हम उर्दू में किनारा भी कह सकते हैं। इट इज़ यूजुअली वेरी लो, ये बहुत लो होती है। कोस्टल एरियाज़ आर ऑल्सो नोन एज शोर्स एंड सी साइड। कोस्टल एरियाज़ को हम जो है वो शोर्स भी कह सकते हैं और सी साइड भी कह सकते हैं। Oceans. What are oceans? Large areas of water on the earth are called oceans. हमारे planet earth पे जो large areas होते हैं water के, जो large water bodies होती हैं उन्हें हम कहते हैं oceans. Some parts of the ocean are very deep. For example, अब ocean के कुछ parts ऐसे होते हैं जो काफ़ी deep होते हैं, जैसे कि the deepest point in the ocean is the Mariana Trench. अब एक डीपेस्ट पॉइंट है ओशन का, वो है मरियाना ट्रेंच एंड इट इज़ इन दी पैसिफिक ओशन और वो पैसिफिक ओशन में है जो कि 11,022 मीटर्स डीप है, यानी कि 11,022 मीटर्स डीप है, गहरा है। अब सम ओशंस आर अटलांटिक ओशन एंड इंडियन ओशन एक्सेट्रा। अब कुछ ओशंस हैं जिनमें से एक है अटलांटिक ओशन और दूसरा है इंडियन ओशन। Now, sea. Smaller areas of water on the earth are called seas.
आपने देखा होगा हमारे प्लैनेट अर्थ पे जो स्मॉलर एरियाज हैं वाटर के वो कहलाते हैं सी। सी ओशन से छोटे होते हैं। सी वाटर इज सॉल्टी एंड देयर आर वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन एंड सी। सी वाटर सॉल्टी होता है मीन्स नमकीन। और आपने देखा होगा सी साइड पे अगर आप कभी गए हैं तो सी का जो पानी है उनके ऊपर वेव्स होती हैं मीन्स लहरें होती हैं। And the water in the sea is always moving about. These movements are called currents. What are currents? अब वाटर जो होता है सी पे वो हमेशा हिल रहा होता है, मूविंग अबाउट होता है। इन मूवमेंट्स को हम कहते हैं currents. Now, mountains. What are mountains? A mountain is a landform that rises high above its surroundings. माउंटेन एक ऐसी लैंडफॉर्म है जो कि अपनी सराउंडिंग्स से काफ़ी ऊंची होती है। सराउंडिंग मीन्स आसपास की चीज़ों से काफ़ी ऊंची होती है। माउंटेन्स आर हायर देन हिल्स। माउंटेन्स हिल्स से ऊंचे होते हैं। हिल्स कहते हैं छोटी छोटी स्मॉलर पहाड़ियों को। It can reach a height of over 8,000 meters above sea level. और नॉर्मली माउंटेन्स की जो हाइट हो सकती है वो हमारे नॉर्मली सी लेवल से 8,000 मीटर्स अबव हो सकती है, यानी कि ऊपर हो सकती है। Mount Everest in Nepal is the highest mountain in the world. Do you know that Mount Everest जो नेपाल में है इज़ द हाईएस्ट माउंटेन, यानी कि सबसे ऊंचा माउंटेन है दुनिया का। और उसकी हाइट कितनी है? इट इज़ हाइट ऑफ अबाउट 8,848 meters high. And the second highest peak in the world is the K2. Now, hills. What are hills? A piece of land that rises higher than everything around it. लैंड का वो पार्ट जो कि अपनी इर्द गिर्द आसपास की तमाम चीज़ों से थोड़ी हायर होती है। बट हिल्स आर नॉट हाई एंड स्टीप एज माउंटेन। लेकिन हिल्स जो है वो माउंटेन से ना तो ज़्यादा हाई होती हैं और ना ही स्टीप होती हैं। वैलीज। द लो लैंड बिटवीन द हिल्स और माउंटेन्स इज़ कॉल्ड वैली। अब वो लैंड जो कि हिल्स और माउंटेन के बीच में होती है हम उसे वैली कह सकते हैं, लाइक हुंजा वैली, कश्मीर वैली एंड नीलम वैली। प्लेटोज। A high area of land that is flat on top is called a plateaus. लैंड का वो हाई एरिया जो कि टॉप से फ्लैट होता है मीन्स थोड़ा सा चपटा होता है उसे हम प्लेटोज कहते हैं। एंड द बिगेस्ट एंड द टॉलेस्ट प्लेटो इन द वर्ल्ड इज़ द तिब्बतन प्लेटो। अब सबसे बिगेस्ट और जो टॉलेस्ट प्लेटो हैं वर्ल्ड में वो है तिब्बतन प्लेटो। प्लेन्स। अ प्लेन इज़ अ लो फ्लैट लैंड। प्लेन्स को हम लो फ्लैट लैंड भी कह सकते हैं जहाँ हम इजीली वेजिटेशन कर सकते हैं। डेजर्ट्स। A dry sandy place with very little amount of water on earth is called desert. अब deserts क्या होते हैं? वो लैंड का वो पार्ट जो कि बहुत ड्राई होता है, सैंडी होता है और रॉकी होता है और जहाँ पे बहुत कम अमाउंट में रेन होती है, रेन फॉलिंग होती है, जहाँ बारिश बहुत कम होती है या जहाँ पानी बहुत ही कम अमाउंट में होता है उस लैंड को हम कहते हैं डेजर्ट। Differentiate between an island and a lake. What are islands? An area of land surrounded by water on all sides is called an island. लैंड का वो एरिया जिसके आसपास यानी कि वाटर मौजूद हो, चारों तरफ पानी हो और बीच में सिर्फ लैंड का एक छोटा सा पार्ट हो उसे हम कहते हैं आइलैंड। फॉर एग्जाम्पल चरना आइलैंड। लेक। A body of water surrounded by land on all sides is called a lake.
अब ऐसी वाटर बॉडी जिसके आसपास लैंड हो उसे हम कह सकते हैं लेक. फॉर एग्जाम्पल सैफल मुलूक लेक और कलरी लेक. रिवर. A river is a flowing, moving stream of water. River फ्लो करती हुई एक मूविंग स्ट्रीम है वाटर की. स्ट्रीम कहते हैं नदी को. We get fresh water from river and lake. Some rivers are river Indus and river Ravi. Last topic is why it is important to keep our lakes and rivers clean. रिवर्स और लेक्स को क्लीन रखना क्यों इम्पॉर्टेंट है? इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप आवर लेक्स एंड रिवर्स क्लीन बिकॉज dirty water causes diseases among plants and animals and most of them die due to it. रिवर्स और लेक्स को क्लीन रखना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो डर्टी वाटर होता है उससे बीमारियां फैलती हैं जिससे हमारे जो प्लांट्स हैं और जो एनिमल्स हैं वो मर जाते हैं. एंड दिस अपसेट द साइकिल ऑफ नेचर एंड कॉजेज प्रॉब्लम. और इसकी वजह से जो हमारी जो साइकिल है नेचर की वो डिस्टर्ब हो जाती है और उससे प्रॉब्लम्स होती हैं. Now, after the explanation, let's take a quick review of today's lecture. In this lecture, we have learned about ratio of water and land on earth, coast, oceans, seas, mountains, hills, valleys, plateaus, plains and deserts, differentiate between island and lake, river, and why it is important to keep our lakes and rivers clean. Home assignment for lecture 5. Show the ratio of water and land on earth with the help of diagram. लैंड एंड वाटर का जो रेशियो है वो डायग्राम की हेल्प से आपको शो करना है विच मीन्स आपको डायग्राम ड्रॉ करनी है. व्हाट आर ओशंस. ओशंस क्या होते हैं लेक्चर में इजीली अवेलेबल है. व्हाट आर करंट्स. करंट्स क्या होती हैं वो भी लेक्चर में इजीली अवेलेबल है. डिफ्रेंशिएट बिटवीन एन आइलैंड एंड अ लेक. आइलैंड और लेक के बीच में आपको डिफ्रेंशिएट बताना है, फ़र्क क्या है वो बताना है. एंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप आवर लेक्स एंड रिवर्स क्लीन. लेक्स और रिवर्स को क्लीन रखना क्यों इम्पॉर्टेंट है. नोट. कंप्लीट बुक पेज नंबर 6 and 7 क्वेश्चन C and D इन बुक. बुक में आपको ये जो पेज नंबर 6 and 7 है इसकी एक्सरसाइज C and D आपको बुक में कंप्लीट करनी है. ओके.